This is an Indian award show. Prepare for the worst. There will be screw-ups, slides will get stuck, lighting will be asynchronous, equipment will break down faster than coalitions. We will forget lines, miss cues, general mayhem and incompetence is assured. Basically, we will try and follow the best practices set by Filmfare. It's a tough ask, but we will try. Any excellence or perfection is unintended and seriously regretted. Everybody knows the stuff. Everybody's in the game. Everybody wants a cut. Absolute corruption. Crazy, crazy insane. You weren't expecting this, huh? Okay, hello. Welcome to Jai Hind's Sadma Awards 2013, everyone! I'm glad I got my private audience here. I'm your host for the night, Ashwin Mushran. And if the party that must not be named doesn't attack me for wearing this costume or not wearing anything, we should have a great night ahead of us. Now, I'm sure you're all wondering what the fuck I'm wearing. Or why I'm wearing this. You know, I can see a few people getting excited already, a little bit of skin show, white legs, I fell into a tub of Fair and Lovely when I was little. Yeah, never had to use it again. That's how we do it, yeah. You know, you're mentally masturbating in your mind already. Gora chamda. I don't mind as long as you pay me later. It's just a transaction. I'm not afraid to admit it. It's okay. I do a lot of things for money. But I just don't want you making the Manmohan Singh face while you're thinking about me. You know what a Manmohan Singh face is? Huh? It's this. It's the face that says, I've been jerking off for the last 9 years, but I'm still not enjoying it. Yeah, clap. Clap, bindas. So anyway, here we are with the Sadma Awards, ladies and gentlemen, the awards for the worst of everything in the last year. We have categories like Foot in the Mouth Award, Richest Gandhi Alive, Script Ki Pakad Ki Leli, Sadma Bhushan, Sadma Vibhushan, and the biggest award tonight, the Jai Hind Ratna. I'm sure many of you are waiting only for the Nangi Ladki of the Year award. And I'm sorry, cheap production, all you got was a Nanga Ladka. I apologize for that. But of course, now ladies and gentlemen, this night has also been dedicated to the battle of the Pappus and the Fekus. In other words, the battle of Rahul Gandhi fans and Narendra Modi fans. Now, if you've not been living in a cave or at Saki Naka, which is pretty much the same thing. Yeah, I know. Obviously that side is not living in Saki Naka. Yeah. You surely must have some idea about how much the Pappus and the Fekus have been fighting with each other recently. Now, the Fekus are saying that Modi saved 15,000 Gujarati tourists from Uttarakhand. Now, the first thing I want to know is, what the fuck were 15,000 Gujarati tourists doing in Uttarakhand after so many Gujarati tourism ads? Hey, Amba Mata ka mandir nahi janega. Every day on the radio, and still no 15,000 people left after those ads. Now the Pappus are saying, make Pappu the Prime Minister and he will make sure that no floods will ever happen again. Yeah, I know. I mean, and I actually believe that. I believe that because the day Rahul Gandhi becomes the Prime Minister, all natural calamities will resign. They will say, अब इतनी बड़ी calamity के सामने हमारी क्या औकात? So anyway, ladies and gentlemen, welcome to the Sadma Awards, as I said earlier. And now, are you ready for the first performance of the night? Because I know you do not want to see this for the whole evening. I understand that.
So are you ready for the first act of the evening? I need you to say Sadma! Together. You can't just so on 1, 2, 3. 1, 2, 3. I want you to welcome Jai Hind's host and one of the finest and funniest theatre actors in Bombay. Ladies and gentlemen, please give a huge welcome to the one and only fabulous Mr. Sumit Raghavan! Yeah. ये क्या है भाई? अश्विन, बॉस ये क्या पहना है तूने और ये क्यों पहना है? Sumit, actually there are 2 reasons why actually 3 reasons why I'm wearing this. ये अच्छा है? 1, this show is fixed. It's totally fixed, I swear. I swear on Sri Sant, it's fixed. Okay? Now, I'll tell you, when I raise this side of the towel, it means that the Feku camp is going to win. When I raise this side of the towel, it means the Pappu camp will win. And if I raise this, listen. That's for the Sunny Leone Award later. Ashwin, just chill. Right? We had a voting system, alright? हम लोग fraud नहीं करते. Hey, Sumit, यार voting system तो था, but face it, Sumit, who votes nowadays? You don't vote. I don't vote. People in cities don't vote. People from Bandra and South Bombay don't vote. In fact, you know what they call election day in South Bombay? What? Fuck man, another dry day. But Fixing is profitable, Sumit. और वैसे भी आजकल जो चीज फिक्स नहीं है उसको कुछ इज्जत नहीं मिलती. Like the IPL is fixed and hockey is not. So basically hockey is treated like how the BJP treated LK Advani. Yeah. Okay, and what's the second reason? Because of this latest ban on mannequins. Now they're saying mannequins cause rape. So now the list of things that cause rape look like this. Chow mein, not calling the rapist bhaiya, drinking alcohol, wearing Western clothes, wearing any clothes, being a woman, and looking at mannequins. Okay. Things that don't cause rape. Men. But you know what? I do think mannequins cause rape. मनमोहन सिंह नाम के एक मैनिकन ने पिछले 9 साल से हमारी इकोनॉमी का Sumit, I guess that is true. Yes. Exactly. Okay, tell me the last reason. The last reason is sex. Huh? It's sex. Sex. I'm sex. You're sex. This is sex. You cannot have an award show without sex. I've been brought here for sex. Not for sex with you, but I have just been brought here for sex. I am sex. All right. Okay. That is all that sells. So band, play some music. I'll show you. इतना मन से मत करो. तो जो कुछ करना है बेटा बैक स्टेज जाकर करो. ठीक है, मैं I'll think about that. Please, seriously. You're looking very sexy. भैया. Yes, भैया. सब बढ़िया. वो ठंडा है यार. ठीक है, कोई बात नहीं. After that little bit, which could have gone any which way, I'm here and I'm ready to present the first bunch of awards. सबसे पहले जो कैटेगरी में लेकर आया हूँ आपके सामने वो है Foot in the Mouth Award for Maximum बकवास ही नहीं है. Now I don't know कि ये अवार्ड सीधे कपिल सिब्बल को क्यों नहीं दिया गया.
नहीं हाँ शायद ऐसे हो सकता है कि जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि लता दीदी ने फिल्म फेयर में से रिटायरमेंट ले ली थी, यू नो कि इतने अवार्ड्स जीत रही हूँ अभी, अलका को दो, अनुराधा को दो। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि कपिल सिब्बल ने भी ऐसे कुछ सोचा होगा, यार कितने सालों में मैं ही जीतूंगा यार, किसी और को जीतूंगा। बट एनीवे हमारे यहाँ पर काफी सारे नेता हैं जो एलिजिबल है। सम ऑफ द टॉप कमेंट्स which make for honorable mention are Mamta Banerjee. इन्होंने कहा है कि rapes happen because boy and girl meet. What an observation. लड़का लड़की मिलता उधर गंडगोल होता है। इट्स लाइक सेइंग कि एक्सीडेंट इसीलिए होता है क्योंकि वो कार का पहिया रास्ते से मिलता है। सेकंड ऑनरेबल मेंशन इज आसाराम बापू। रेपिस्ट को भैया बोलने से रेप से बचा जा सकता है, ये कहते हैं। अनदर माइंड ब्लोइंग ऑब्जर्वेशन, आई जस्ट वंडर कि उन्हें ये सब कैसे पता है। रेपिस्ट को भैया बोले कि रेप करने आ रहे, भैया भैया, अच्छा ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। अच्छा इसीलिए शायद इनको बापू बोलते हैं। कांग्रेस के एक मिनिस्टर चरणदास महंत, इन्होंने तो कहा है कि सोनिया जी अगर कहें तो मैं उनके घर में झाड़ू पोछा लगा सकता हूं। अब सोनिया जी तो शायद नहीं कहेंगी, आजकल काम वाली भाइयों की बहुत टेंशन है, आप लोगों को किसी को चाहिए तो बोलो, चरणदास महंत को बोल देंगे, आपके घर आ जाएंगे, भैया नाश्ता और 2 कप चाय तो फ्री दे ही सकते हैं। कोई बात नहीं, नॉमिनीज की ओर चलते हैं। एंड द फर्स्ट नॉमिनी इज अकबरुद्दीन ओवैसी। एनी गेसेस अकबरुद्दीन ओवैसी कौन है इसमें से? चलो पोल करते हैं आप लोग। योर राइट और माई राइट? योर राइट। नॉट बैड, नॉट बैड। ठीक है, लास्ट ईयर इनका एक वीडियो निकला था जहां पर इन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए 25 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदू आपस में भिड़ जाए तो पता चल जाएगा कौन ज्यादा पावरफुल है। बरसाते आधे घंटे के लिए पुलिस को हटा दे। अगर सिक्योरिटी को ही हटाना था तो फिर मैं भी जाकर मनमोहन सिंह को टिक करके टिचकी मार के आ सकता है। या फिर आप कोई मान लो कि कोई गेम खेल रहे हो और गेम में मतलब आप खेल रहे हो और सडनली अपने ओपोनेंट को बोलो ये टफ लेवल हटा दो यार, फिर मैं भी टॉप स्कोरर बन जाऊंगा। एनीवे, सेकंड नॉमिनी इज जस्टिस काजू। जस्टिस काजू ने भी इस साल इतना मुंह खोला है कि प्रेम चोपड़ा साहब की एक लाइन याद आ गई कि गाय जब भी पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, गाय नहीं गाएगी। काजू साहब ने कहा कि संजय दत्त की सजा जो है वो कम हो जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुन्ना भाई जैसी कमाल की फिल्म की। ये सुनकर खुद संजू बाबा ने काजू को फोन किया होगा और कहा होगा अबे मामू मरवाएगा क्या? अरे मुन्ना भाई की वजह से 3 साल सजा तो कम कर देंगे, लेकिन ब्लू और चतुर सिंह 2 स्टार के लिए उम्र कैद कर देंगे भाई। और जिला गाजियाबाद और पुलिसगिरी की तो बात ही मत कर। है नेक्स्ट नॉमिनी इज सलमान खुर्शीद। इन्होंने धमकी दी थी अरविंद केजरीवाल को कि एक बार वो फारुखाबाद आ तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं जा पाएंगे। ये लोकल टूरिज्म प्रमोट करने का उनका एक अपना तरीका लगता है। हाँ। धमकी देकर यहां पर बुला लो, फिर उनको ये मंडी है, ये ओके
अच्छा, आप लोगों ने इनकी वेबसाइट देखी है? इनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि डायनामिक लीडर ऑफ मैनकाइंड। फॉर दिस बकवास अलोन ही गेट्स नॉमिनेटेड। लास्ट नॉमिनी फॉर फुट इन द माउथ अवार्ड इज सुशील कुमार शिंदे। अगर वो आज यहाँ पर कहीं होते तो जरूर कहते कि हिंदू टेरर या फॉरेन हैंड है। नहीं, सच कह रहा हूं कि इतनी बकवास की है उन्होंने इस पूरे साल में कि मुझे याद भी नहीं आ रही है। ही इज नॉमिनेटेड, बस उतना ही काफी। गाइस, द विनर इज जस्टिस काजू। फिलहाल ये एक सैंपल अवार्ड रखा है हमने, हम जो विनर्स हैं उनके घर पर पहुंचा देंगे। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स इज रिटायरमेंट ऑफ द ईयर। जी, एंड द नॉमिनीज आर पोप बेनेडिक्ट, आपला सचिन तेंदुलकर, हिलरी क्लिंटन and Ricky Ponting. Nobody gives a fuck about what Ricky Ponting does. उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं। अडवाणी जी भी इनफैक्ट इस लिस्ट में शामिल होने वाले थे, लेकिन एक ही दिन पहले उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। एक्चुअली हुआ यूं कि अडवाणी जी बोले कि कहाँ से ले दो। उनको बाद में पता चला, अरे मैं तो 84 साल का हो गया हूँ, बहुत ज्यादा हो गया, इस्तीफा दे देना चाहिए। कहते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगले दिन उनकी याददाश्त चली गई, 84 साल के थे, इस्तीफा वापस। सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल खत्म होते ही आईपीएल से रिजाइन कर दिया, विच वॉज ऑल्सो हिज कोड ऑफ सेइंग कि हाँ, स्पॉट फिक्सिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बट इट वॉज अ बिग डे। सचिन ने एक ऐसे फॉर्म ऑफ क्रिकेट से संन्यास लिया जो वो कभी खेल ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट, आई थिंक ही विल अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ फुटबॉल, टेनिस एंड कबड्डी। एंड हिलरी क्लिंटन ने इस साल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा कंट्रीज का दौरा किया है। आप गेस कर सकते हैं, 112। सुन के मुझे दौरा आ रहा है, मतलब बेसिकली ये वहां की प्रतिवादी पार्टी में। एंड अवार्ड गोस टू पोप बेनेडिक्ट फॉर पुटिंग अनदर नेम इन द कॉफिन ऑफ रिलीजन। हमने 19 मई 2011 में प्रेडिक्ट किया था कि ये पोप ऐसा ही कुछ करेगा। देखिए, I think I'm going to call Richard Dawkins. Can he stop the end of the world? No, but he can stop me from believing in God, yeah? Hello, Richard? Yes, it's Pope, yeah. I want to be an atheist, Richard, yeah? Yes, I know me, atheist, yes. Save me, please, Richard. What? 8 o'clock, yes, I'll be there. जो कुछ आपने सुना होगा जरूर तालियां बजा दीजिए हमारे पोप के लिए। He was, by the way, he was calling Richard Dawkins, yes, the Pope of atheism. So what did you expect? Anyway, next category of award is Pheko of the Year. आज nominees हैं नरेंद्र मोदी, मनीष तिवारी, रवि शास्त्री और डेरेक ओब्रायन। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास आज आए हैं एक आम आदमी। जी समझ के चलिए दादाजी, देख के चलिए। आजादी के बाद से आज तक देख ही रहा हूँ, कुछ दिखा नहीं मुझे। क्या देख के चलो, क्यों बुलाया, क्यों यहाँ पर, वो बताओ। नहीं, एक अवार्ड है फेको ऑफ द ईयर, उस पर बात करने के लिए आपको बुलाया है। यही तो दिक्कत है कि एक आम आदमी को सबने मंदिर का घंटा समझ लिया, जो भी आता टंग उसको बजा के निकल जाता है। ये तो वैसे ही सरकार ने इतने सदमे दिए, ऊपर से तुम सदमा अवार्ड खेल लो। नहीं, वैसे ये सरकार जो है वो आम आदमी की ही सरकार है। मनीष तिवारी साहब ने खुद कहा है
कि आम आदमी जो है वो शहंशाह हिंदुस्तान है। अच्छा हैं? घंटे का शहंशाह है आम आदमी, शहंशाह बोलते हो? अरे सालों ने वो बहादुर शाह जफर बना के रखा है। नाम मेरा लेते हो, काम खुद का करते हो वो लोग। लेकिन सरकार से अगर आपको इतनी शिकायत है, इतनी दिक्कतें हैं, तो फिर आप वोटिंग करने क्यों नहीं जाते? कितने सालों से आपने वोटिंग नहीं की है? हमारे देश की वोटिंग की परसेंटेज पता है आपको? सिर्फ 40%। मैंने जब जब वोट दिया है दूसरी सरकार बनी है। सबसे पहले मैंने वोट दिया था तो नेहरू मिला, उसके बाद 12 साल तक वोट नहीं दिया, फिर वोट दिया तो इंदिरा गांधी मिली। भरोसा उठ गया मेरा, मैंने कहा वोट नहीं दूंगा। फिर कुछ सालों बाद वोट देने गया तो राजीव गांधी मिल गए। तब तो मैंने गांठ मार ली। क्या क्या मार ली? गांठ मार ली कि अब वोट नहीं दूंगा मैं। इसके बाद फिर लोगों ने धक्का मारा, मैं बोला फिर जाकर के वोट दे करके आता हूं। इस बार मैंने अपनी पार्टी बदल ली। मैंने कहा इस बार सोनिया गांधी को वोट दूंगा, हाथ पे मोहर लगाऊंगा। लेकिन फिर चूतिया बना दिया, वो मनमोहन सिंह मिल गया। मनमोहन सिंह? तब से मैंने कसम खाई कि अब आज के बाद वोट नहीं दूंगा। लेकिन फिर लोग नहीं माने, बोले जागो जागो, बहन तो चाय पीना मुश्किल कर दिया, कितना जगाया मुझे। तो मैंने फिर से जाकर के गांधी को वोट दिया, लेकिन किस्मत देखो फिर से सरदार जी मिल गए। अरे क्या चल क्या रहा है, जब चूतिया पर क्या है? वो एक ही पार्टी के हैं। हाँ हाँ हाँ, एक ही पार्टी के। बोलो यार जब सब एक ही पार्टी के हैं तो आम आदमी को चूतिया क्यों बनाया जा रहा है? सब सेम टू सेम है। साला 32 साल मैंने गांधी के खिलाफ वोट दिया, पर हर बार गांधी मिला। अब 9 साल से गांधी मांग रहा हूं तो सरदार जी मिल रहे हैं। क्या मेरा कैंडिडेट कभी नहीं जीतेगा? नहीं, मुझे लगता है आपको भी बीजेपी की तरह ईवीएम पे शक है ना? ईवीएम? हाँ। अबे ये क्या कोई नई पार्टी है ये? सीपीएम तो सुना था मैंने। और ये जो सीपीएम वाले ने ये भी बड़े हलकट है। अच्छा। ये दूसरे किस्म के कमीने लोग हैं। ये बोलते लड़ो, सरकार नहीं बदलने दीजिए, बंदूक उठा लो। अबे चूतियों, सरकार चीज बदलने वाली चीज नहीं है। हिमालय पिघल जाएगा लेकिन सरकार नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। ग्लोबल वार्मिंग। अरे कहाँ जा रहे हो दादाजी? रुकिए, अभी तो आपको और बताना है, मतलब इंटरव्यू चल रहा है आपका। कहाँ जा रहे हैं आप? अबे बताना क्या, चूतिया बना के रखा और कोई काम नहीं है? कितना काम में फंसा के रखा है। ये बिल भरो, वो बिल भरो, इधर जाओ, उधर धक्के खाओ, इधर लाइन लगाओ, रोटी खाओ, उसके लिए कमाओ, ये वाला टैक्स भरो, वो वाला टैक्स भरो। सुबह से शाम तक बैलों की तरह जोत रखा है। इंटरव्यू के लिए आम आदमी को बुलाते हो? अरे उन नेताओं को बुला, बहन आम आदमी का टाइम खोटी करते हो। 5 साल बैठ करके वो लोग यही प्लानिंग बनाते हैं कि आम आदमी की कैसे मारनी। उन्हीं के पास टाइम है, उन्हीं को बुलाओ, उन्हीं का इंटरव्यू लो, समझे? मेरा टाइम खोटी मत करो, मेरे ऊपर मदद करो। जी जी। एक बार कह रहा हूं कि अगर 2014 में फिर से कोई गांधी मिल गया तो यह आम आदमी नहीं रहेगा। पता है ना आपको क्या बन जाएगा? आम से वो कटहल बन जाएगा। कितना खतरनाक होता है। जी जी, नुकीला होता है, नुकीला नुकीला होता है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आम आदमी के लिए। एंड द विनर फॉर फेकू ऑफ द ईयर इज मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने मोदी को फेकू डिक्लेयर करके ट्विटर पे हैशटैग चलाया था। पब्लिक ने भी उसे फेकू ऑफ द ईयर चुन लिया। बोलो, दिल पे मत लेना मनीष, कहीं और लेने के लोग। मैंने सुना है यहाँ पे सदमा अवार्ड हो रहा है, मैं भी एक सदमा अवार्ड देना चाहता हूँ। ये जो अवार्ड है इसका नाम है निर्वस्त्र कन्या ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड उस कन्या को दिया जाएगा
जिसने निर्वस्त्रता में प्रचंडता हासिल की होगी। क्योंकि क्या है कि क्योंकि रिसेंटली द्रौपदी की तरह मेरा भी चीरहरण हुआ गोवा में,